Hey guys, so as we all know that NEET PG will be expected in next 6-7 months, so it will be somewhere around May or June, or maybe 1 or 2 months later or earlier. So I can't predict the exact date, but it will be somewhere around it. So I'm Dr. Shivam Arora and I've secured rank 9th in NEET PG 2020 exam and then rank 2 in INI SS exam, and currently I'm doing my DM cardiology from AIMS New Delhi. So today we'll discuss about the detailed strategy for NEET PG 2026. So first of all, I'll tell you how I prepare for any competitive exam. Suppose I have to prepare for any exam, let's say MRCP, which I'll be preparing in next year. So what I do is, I generally what I do कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूँ और प्रीवियस ईयर पेपर देखता हूँ उस पर्टिकुलर एग्जाम के बिफोर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड देन आई सी कि मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज से वो मेरे को कितना ईजी और कितना टफ लग रहा है एंड फ्रॉम द सोर्सेज आई एम थिंकिंग ऑफ स्टडिंग उनसे मैं कितना आगे कर सकता हूँ उससे देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग अनदर थिंग दैट आई डू यूज टू डू एंड विल डू इज कि आई इनिशिएट एंड देन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ माई स्टडी ग्रेजुअली बिकॉज अगर आप फर्स्ट डे सेकेंड डे इतना ज़्यादा पढ़ लोगे तो यू विल थिंक दैट इट्स अ वेरी टफ जॉब टू गो फॉर द नेक्स्ट 6 months. So 6 months is a long period, but it is again not a very long period to not start now, but you will have to increase gradually. So when I started preparing for NEET PG, I asked my senior कि आप लोग कैसे 16 hours पढ़ लेते हो जब इतना inertia आ गया in my UG days कि मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ. तो what they told me is कि पहले लाइब्रेरी में या फिर रूम पे बैठना सीखो. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं लाइब्रेरी जाता था एंड ऐसे टारगेट करता था कि आई हैव टू सिट हेयर फॉर 10 hours. चाहे मैं उस 10 hours में थोड़ा सा पढूँ, थोड़ी मूवी देखूँ, थोड़ी चैट करूँ, थोड़ा सा फ़ोन चलाऊँ, थोड़ी रील्स देखूँ, आई हैव टू सिट देयर. जब आपको बैठना आ जाएगा तब आपको पढ़ना भी आ जाएगा बिकॉज अगर आप 10 घंटे वहाँ बैठ रहे हो whether using your phone or something, तब भी यू आर सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. तो अगर आपको एक बार बैठना आ गया देन यू विल थिंक लेटर ऑन जब आपको लोग भी दिखेंगे पढ़ते हुए और मे बी आप रूम पे भी पढ़ रहे हो, तो जब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं बैठा हूँ खाली क्या करूँ, देन यू विल स्टडी. सो दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट 6 month स्ट्रेटजी. तो आई होप जो भी आप में से फ्रेशर्स हैं उन्होंने वीडियोस देख ली होंगे एंड हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स, एंड मे बी जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास भी एक सोर्स होगा टू फोकस ऑन. और अगर नहीं है तो जस्ट ट्राई टू फिनिश इट ऑफ विद इन द नेक्स्ट 15 days ऑफ दिस दिसंबर. नाउ कमिंग ऑन टू कि 6 months में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट लाइक one revision 3 months, another revision 2 months, and then one revision for 1 month. So you can have three revisions, 3, 2, and 1 months, and each revision के अपने अपने importance है. Like first revision is very very crucial for concepts. Like when you were seeing videos, you were building concept. First revision is mainly for the concepts thing. Second revision is for concepts जो first revision में नहीं याद हो पाए, and the volatile things, and mainly for preparing your 20th copy. While third revision, that is a very quick revision of 1 month, is mainly for the volatile thing, and you have to revise your 20th copy along with it. Apart from it, QBank is the most important thing for any competitive exam, I believe. What I used to do, I used to solve 30-40 questions per day, whether PYQs or non PYQs. So PYQs are really important. उनको तो आपको ध्यान से करना ही है. You have to read the explanation, you have to learn them by heart, और अगर आपके नोट्स में नहीं है you have to add them. But apart from PYQs, अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो just don't add them, but it will help you to learn a volatile things, build a multiple concepts. और कुछ रेयर क्वेश्चंस होंगे जो आप क्यूबैंक में करोगे, don't add them in your notes, बट स्टिल अगर वो रेयर क्वेश्चन आते हैं और आपने क्वेश्चन किया है तो कहीं ना कहीं विल गेट एन एज. आप उस टाइम पे यू कैन गेस बेटर बिकॉज यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन. अपार्ट फ्रॉम इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सॉल्विंग क्यूबैंक इज आपकी वॉलेटाइल चीज़ें बहुत सारी याद हो जाएंगी. लाइक व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्राउप और व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइटल स्टेनोसिस. ये सब आप थ्योरी में पढ़ रहे होगे अपने नोट्स में, बट वो याद आप क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको याद होता रहेगा. लाइक मैंने मोस्ट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्राउप नोट्स में पढ़ा है, बट अगर मैंने व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्राउप अपने क्वेश्चन बैंक में 2 बार सॉल्व कर लिया, आई विल रिमेंबर इट फॉर लाइफ. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस कि आपको चाहे वो PYQs नहीं भी है, यू विल रिमेंबर अ लॉट ऑफ वॉलेटाइल थिंग्स ऐसे. बिकॉज वॉलेटाइल थिंग्स के 100 क्वेश्चन आएंगे एंड बहुत चांसेस होते हैं हम बोलते हैं. सो द ट्रिक ऑफ रिमेंबरिंग द वॉलेटाइल स्टफ इज, वन इज दिस सॉल्विंग क्वेश्चंस, another is remembering, you're revising your 20th copy, and the third thing is discussing it with friends. Like you can discuss a lot of volatile stuff or volatile tables with your friends, so you'll have a situational memory of that topic. Apart from it, start giving GTs early. बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर ले, सेकंड रिवीजन कंप्लीट कर लें, देन विल गिव GTs.
क्योंकि अगर हमारे मार्क्स कम आएंगे तो अगेन विल फील डिप्रेस्ड और लो एनर्जी एंड विल नॉट प्रिपेयर वेल। बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कंपेयर योर मार्क्स विद अदर्स, अपने से कंपेयर करो। आई रिमेंबर व्हेन आई गेव माई फर्स्ट जीटी, I got a rank of 4,000 out of 8,000 people. And one of my colleague, who was a topper of my UG college, got a rank of 10. But in main exam, I got a rank of 9 and she got a rank of 20. So it doesn't make a difference till the day of the exam. उस डे पे उस एग्ज़ाम में हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड मैटर्स। 3 महीने पहले 4 महीने पहले यू आर गिविंग अ जी टी, यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, शी इज़ वेल प्रिपेयर्ड, डजेंट मैटर। So start giving GTs early and compare your marks with yourselves only. कि next GT में I have to get more questions correct and so on, and you will see कि हर 2-3 GTs में you will see a jump of 10-15 questions. So do these things, and for the volatile stuff I again say discuss the questions with your friends, discuss the volatile things with your friends, and you will be good to go for your exam. So all the best, and you can like and subscribe to this channel for more such videos.